Class 9, we'll starting with a new chapter, study of gas law. But before going towards it, I just want to give you a small introduction. I think you remember matter. So you know how many states of matter are there in case of this thing matter. So I think there are three states if you remember: solid, liquid, and gases. So we know that these are the three states of matter are there, right? So we are focusing in this chapter about gases, and we will see a small idea of gases. If you remember about gas, you know that gas, if I draw a small structure and I put two particles of gases over here, then you should understand that about it, that this thing gases do not have a definite shape. Okay, so they don't have a shape just like liquids. So what you get this point, if you are placing the gas in this container, it will take the shape of this. If you take the put this gas particles in this container, so it will take the shape of this container. So what is that? It do not have a definite shape. So what you will write down: do not have a definite shape. I am just giving you an introduction of it. Okay, so it's not having in this, and you are also understanding that the particles are far from each other, or you can say the molecules of the gases are far from each other. The distance between these, agar suppose karo we are considering it as a molecule, then the distance between the molecule is large. Okay, so what is happening if I am considering it as a molecule of gas? If I am taking particle of gas भी कह सकते हो, तो distance between the particles या जो भी आप ले रहे हैं, molecules of gases are large. ठीक है, और larger करोगे तो you have to compare with the liquids and as well as with the solids. ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है. Now next point, you know that these particles are attracted to each other by a force. So that force is what you know, and you should be remembering that force of attraction. ठीक है, the force of attraction between the molecules is, if you remember, is negligible or very less. ठीक है, बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. सो जाहिर सी बात है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन दो पार्टिकल्स को एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहा है ना. अब डिस्टेंस दूर है तो जो फोर्स अट्रैक्शन लगना चाहिए वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है या बिल्कुल लग ही नहीं रहा है, क्योंकि दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी फास्ट. सपोज कोई एक कमरा है एंड वन पार्टिकल इज इन वन प्लेस एंड द अदर पार्टिकल्स अदर प्लेस. सो यू कांट इवन मेक देम क्लोजर, है ना. एक ओपन रूम में है तो काफ़ी दूर दूर है, तो आप कैसे उसको पास ला के रखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगेगा. ठीक है. नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट the molecules of the gases, this thing also we have to focus. Now suppose I have placed the gas in a container. ठीक है, ये container मैं assume कर रही हूँ कि it is a container. Then you should understand that the particles of gases or the molecules of the gases moves in the straight line and they undergo, जैसे एक particle है, अब यहाँ move करेगा तो ये ऐसे ऐसे सीधे सीधे चलेगा. अब यहाँ एक particle है, वो जैसे भी जो भी रूट पकड़े वो straight line पकड़ेगा. अब बेसिकली क्या होगा, अब इसके रास्ते में एक और मॉलिक्यूल आ गया, अब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये इससे कोलाइड कर जाएगा, कोलिजन जिसे हम कहते हैं. ठीक है, तो वो क्या होता है, पार्टिकल्स क्या है, कोलिजन करते रहते हैं और मैक्सिमम स्पेस में कंटेनर में आराम से घुसते. सपोज करो यहाँ तक आया, अब यहाँ से टकराया, कोलिजन मतलब होता है टकराना. ठीक है, तो कोलाइड करा तो उसने क्या करा, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया. तो अब सोचो, शुरू करा था यहाँ और एंड इसका कहाँ हुआ है, इस पार्टिकल का यहाँ हो गया. तो यू आर अज्यूमिंग दैट कि they are moving in a straight line and they are undergoing random collisions with the other molecules and they can occupy the maximum space in the container. ठीक है, कहीं पर भी ये जा सकते हैं क्योंकि बहुत easily move करते हैं और random collision होता है तो एक दूसरे टकरा के अपना रास्ता पूरा कवर करते रहते हैं. तो I think this general concept of gases is clear to you. Now we can go for the behavior and the characteristics properties of gases. Now let's come to the behavior and the characteristics properties of the gases we should understand. Same, I am just writing the few properties, then we'll discuss about this thing. No definite shape
और वॉल्यूम। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं अभी कि इसका कोई गैस का कोई स्पेस नहीं होता है। वो कंटेनर, अभी मैंने बताया कि अगर ये कंटेनर है तो गैस के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसका शेप ले लेंगे। अगर ये कंटेनर है आपका तो गैस क्या है, इसका शेप ले लेंगे। तो जैसा आपका कंटेनर होता है तो गैसेस ऑक्यूपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेसेस, दैट्स व्हाई द शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नॉट एट ऑल fixed, and the shape and the volume of the container in which they are filled, they are occupying that thing. Now why this is happening कि इनका definite shape या वो नहीं हो रहा है, ये जो container है उसका वो shape ले लेते हैं जिसमें उनको भरा जाता है। तो there is a specific reason for it, ठीक है, and this reason was designed on the basis of kinetic theory. So if you see that these things, if you just see the particles or the molecules of the gases are far from each other, so what you get it, ये सपोज करो ये हम एज्यूम कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस के ही मॉलिक्यूल्स हैं, गैस भरी हुई है तो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। सो दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज आर फार फ्रॉम ईच अदर, सो बिकॉज ऑफ दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो नेग्लिजिबल और वीक। ठीक है, तो व्हाट वी गेट द आंसर, अगर टीचर आपसे पूछती तो आंसर आप क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ gas are far from each other और far apart, easy English आप यूज़ कर सकते हैं, and the force of attraction, you can use your own language but the keyword should be there, the force of attraction between the gas molecules is weak और negligible, कुछ भी कह लो, weak कह लो या फिर negligible बोल लो, it's not a issue. So what happened, these molecules are in continuation in motion, है ना, मूव करते रहते हैं। अभी मैंने बताया कि मूव करते रहते हैं। अब यहाँ कोई पार्टिकल है उससे टकराए, डायरेक्शन चेंज की, दीवार से टकराए तो ये टकराते रहते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन इन द एंटायर स्पेस एंड देयर मूवमेंट इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द वॉल। तो मतलब बेसिकली क्या है कि वो कंटेनर ही टकराएंगे, हम यहाँ से टकराएंगे वापस अंदर, बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि हमने कंटेनर बंद करा रखा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान देना है कि पार्टिकल्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर मूविंग इन अ कंटिन्यूस मोशन एंड दे आर ऑक्यूपाइंग दिस एंटायर स्पेस। ठीक है, सो इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी शुड कम अक्रॉस ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, आई थिंक एवरी वन ऑफ यू हैव गॉट balloons in your homes and you have already filled the balloons with your with the different gases, है ना, आपने यूज़ करा रखा है फिल्ड बैलून। तो आपने देखा है कि वो आप उसको दबाते हैं तो वो कंप्रेस होता जाता है ना, छोटा साइज़ होता जाता है, तो ये चीज़ होती है। नाउ व्हाई दिस इज़ हैपनिंग कि इट कैन बी कंप्रेस टू अ स्मॉलर पीस ऑफ, बहुत कम ऑक्यूपाइड, जैसे सपोज करो ये कंटेनर है, बैलून है, ठीक है, बैलून में तुमने गैस भरी हुई है। अब इस बैलून को तुमने आगे से या नॉट बंदी हुई, अब और छोटा करते गए, छोटे हो सकता है ये बैलून इतनी सी जगह हो रही है और यही जो गैस इसमें फिल्ड है वो इसी इतनी ज़रा से बैलून में आ जाए। ये सपोज करो मैंने बैलून लिया रखा है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज दिस दैट कि दे कैन ईजिली कंप्रेस एंड यू कैन पुट इट इन अ स्मॉलर वॉल्यूम, है ना। अब ये कैसे हुआ, अपने आप तो हुआ नहीं, तुमने ऊपर से जब नॉट को टाइट करना शुरू करा, इसका मतलब यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, है ना। मैंने यहाँ नॉट को टाइट करा तो मैंने यहाँ क्या करा, आई इंक्रीजेज द प्रेशर। तो मैंने प्रेशर को इंक्रीज़ करा तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हुआ मेरा, डिक्रीज़ हो गया। देखो जगह कम घेरा, वॉल्यूम बेसिकली समझो वॉल्यूम क्या होता है, शायद तुम लोग को नहीं, जैसे ये जगह है, ठीक है, अब कोई गैस है इसमें फिल्ड है, ये कितनी जगह ले रहा है, ठीक है, वो चीज़ हो जाती है वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी इसमें बैलून में भरी हुई थी गैस, अब नॉर्मल प्रेशर था तो इतनी ले लिया, अब तुमने प्रेशर बढ़ाया तो बैलून का साइज़ छोटा होता गया, तो क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। अभी देखो वॉल्यूम ज़्यादा था, प्रेशर कम था, प्रेशर तुमने इंक्रीज़ करा, वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट हाउ इट इज़ हैपनिंग। तो उस कंडीशन में क्या हो रही है, जब ये दो कंडीशन लग रही है कि आपने वॉल्यूम, प्रेशर को इंक्रीज़ करा, वॉल्यूम को आपका डिक्रीज़ करा, तो उस कंडीशन में क्या रिजल्ट आया, गैस कंप्रेस्ड हो गई। ठीक है, अभी तक गैस को इतनी जगह लग रही थी, अब गैस क्या है, कम जगह में भी आ जाएगी। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। सो व्हाट विल बी द, ये तो जनरल आइडिया हुआ कि तुमने इंक्रीज़ करा प्रेशर, तुम्हें ये भी बात लिखनी है कि भाई यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, वॉल्यूम इज डिक्रीज एंड गैस इज कंप्रेस्ड, बट यू हैव टू गिव अ स्पेसिफिक आंसर कि गैस हाईली कंप्रेसिबल क्यों होती, क्यों उसको आप कंप्रेस करते हो तो कम जगह में आ जाता है। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स negligible compared to intermolecular distance।
ठीक है, हैंस कैन बी compressed and it can be brought closer to each other, can be brought closer to each other. ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना. नाउ गैसेस, गैस कैन बी एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन. कोई फिक्स वो नहीं है. गैस अगर मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, उस किसी भी डायरेक्शन पे आप उसको प्रेशर आप वो एक्सर्ट कर सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं होता है. जबकि सॉलिड्स और गैसेस में ऐसा नहीं होता है कि वो प्रेशर पार्शली करते हैं, लेकिन ये आप कहीं से भी कर सकते हैं. तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे प्रेशर जो होता है एक यूनिफॉर्म, इक्वल एंड यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. आप समझते हैं कैसे, ठीक है. ये चीज़ छोटी सी बात है. कंटेनर, इसके अंदर आपने गैस भरी रखी है, जाहिर सी बात है जो कंटेनर आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं, ज़रा से इधर कहीं से भी आप उसे कंपेयर कर सकते हैं, और गैस कहीं से भी करिए वो इसी हिसाब से कंप्रेस हो जाती है. कोई ऐसा इशू नहीं कि तो ऊपर से दबाएंगे आप तभी कंप्रेस. जबकि सॉलिड और लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब बिना हर जगह से उनको कंप्रेस कर सकते हैं, वहाँ पर अलग कंडीशन होती है. लेकिन यहाँ पर क्या, आप कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन से करें, गैस एक ही लेवल पर कंप्रेस होती है, ठीक है. अब ऐसा क्यों हुआ, ये वो सॉरी कंप्रेस हो रही है, एक्सर्ट कर रही है, बेसिकली प्रेशर आप उस पर लगा रहे हैं कि आपने इसमें प्रेशर यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से, जाहिर सी बात है प्रेशर लगाएंगे तो गैस कंप्रेस ही होनी है ना. अब देखो क्या होता है जब आप इम्पैक्ट करते हो मॉलिक्यूल्स पर. भाई प्रेशर एक्सर्ट तब हो रहा है, भाई हम सबको मालूम है कि गैस की अपनी एक ओन वेलोसिटी होती है, गैस पार्टिकल्स की, ठीक है. अब क्या हो रहा है कि आपका यहाँ आपने गैस मॉलिक्यूल्स देखा, उनकी हाई वेलोसिटी है, जिसकी अगर वो हाई वेलोसिटी है तो वो भी तो वॉल पे, भाई अब सपोज़ करो इस कंटेनर में गैस में और इनकी वेलोसिटी बहुत है. वेलोसिटी समझ रहे हो कि मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा है गैस पार्टिकल्स की मूव करने की. तो वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, वो भी तो जब तेज़ घूमेंगे तो वो वॉल पे आके स्ट्राइक करेंगे. और वहाँ पे इस दीवार पर जिस भी कंटेनर में तुमने गैस को रखा होगा, उसकी जो बाउंड्री होगी या दीवार होगी, वो चाहे कैसा भी कंटेनर, भाई मैंने ये बनाया कि बैलून है, बैलून का भी तो कंटेनर ही हुआ है ना, जिसके अंदर रखा है. तो बाहर उसकी जो बैलून का कवर है, उसकी अंदर की तरफ से तो उसकी वॉल ही हुई ना, तो वो उस पर उसके पार्टिकल एक्सर्ट करेंगे, है ना. बार बार वो पार्टिकल्स जो हैं जो मूव कर रहे हैं अंदर हाई स्पीड से, तो बार बार इस पर धक्का देंगे, प्रेशर करेंगे, तो क्या करेंगे, एक प्रेशर ही तो एक्सर्ट कर रहे हैं वॉल्स पर. तो ये थोड़ा ध्यान देना कि वो भाई जैसे अगर यहाँ से टकराएगा उसी स्पीड पे इस वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करे, इसी वॉल पे यहाँ एक्सर्ट करे, यहाँ पे वही उसी स्पीड से करेगा, तो ये सेम रहता है. तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स अ गिवन एरिया ऑन द वॉल इन अ यूनिट टाइम. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट. देखो सबसे पहले तुम्हें समझना है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा फोर्थ पॉइंट आ रहा है, लो डेंसिटी. गैसेस की लो डेंसिटी होती है कंपैरिजन टू सॉलिड और लिक्विड. अगर आप सॉलिड्स को देखो, पार्टिकल्स बहुत क्लोजली होते हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होते हैं, है ना. लिक्विड में देखते हैं तो उससे कम हो जाते हैं पार्टिकल्स, लेकिन हाँ गैस से ज़्यादा होते हैं. और गैस के देखते हैं तो बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, ठीक है. तो ये पार्टिकल्स का सिनेरियो है बेसिकली, और पार्टिकल्स की वजह से इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस का. अब को देखो हमारा केस है गैस का, लेकिन हमने सबको बता दिया कि सॉलिड में कैसा है, लिक्विड में कैसा है, और आपका गैस में कैसा है, ठीक है. Now let's come about the gases, because we are talking about gases, so we have to focus on the gases. Now let's see that what happens to the gas scenario. First they are saying they have a very low density. The gases have very low density if you compare it with the solids and liquids. Now how this is happening, why this is there? Because you have to understand that this thing under ordinary pressure, the whatever, suppose you want to convert the solid and liquids, you can convert them to gases, but what happened, the greater increase in the volume will takes place, and then the original one when you talk about the gaseous forms when they are having in a low density. So what is the scenario between it, or what is the cause of it? First of all, you have to see two things: gaseous particles or the molecules. Number of molecules in gases is less, ठीक है. Number of molecules in gases is less per unit volume, ठीक है, of a gas,
ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस इज लेस पर यूनिट वॉल्यूम, या मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर आप गैसेस को देखें, कंपैरिजन गैसेस में कम होता है इफ़ यू कंपेयर इट टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, इसको आप और इजी इंग्लिश में लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स गैसेस में जो होते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम में कम होते हैं कंपैरिजन टू लिक्विड। ऐसे देखो यहाँ मैंने 3 ही बनाए, यहाँ 6 हो गए, यहाँ तो अब और ज़्यादा ही हैं, 12 हैं, तो पार्टिकल्स कम है। अब जिसमें पार्टिकल्स कम है तो जाहिर सी बात है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है गैसेस में ज़्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस between the molecules of gases is very large। ठीक है, तो इनके में जो डिस्टेंस है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, ये दूरी जिसे कहते हैं डिस्टेंस है, वो गैसेस में ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। दैट्स वाई दे हैव अ लो डेंसिटी। देखो अगर डेंसिटी को तुम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में देखो तो डेंसिटी तुमने मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा है। ठीक है, तो डेंसिटी उसी की ज़्यादा होगी जिसका मास ज़्यादा है। ठीक है, और वॉल्यूम कम रहे। ठीक, अब मास डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स किस में ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स किस में ज़्यादा हैं, क्योंकि हम यहाँ हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसकी मास क्या है, ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा। तो सॉलिड में ज़्यादा है क्योंकि मास ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा है, इसमें वॉल्यूम कम है। लेकिन गैस की कंडीशन में अगर आप देखोगे तो गैस क्या है, कम मॉलिक्यूल्स आपके भरे होते हैं उतनी जगह में जितना सॉलिड होता है। ठीक, तो यहाँ क्या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम है, वॉल्यूम क्या है आपकी इन्वर्सली है, ज़्यादा रहेगी, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, लो हो जाएगी, अगर फिजिक्स के टर्म पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ यहाँ पर भी है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम से, यानी मास इसका गैस का कम है, वॉल्यूम क्या है ज़्यादा हो रहा है, डेंसिटी लो हो जा रही है। ठीक, सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज डिफ्यूजिबिलिटी। देखो गैसेस में बहुत अच्छा पॉइंट होता है डिफ्यूजिबिलिटी या मिसिबिलिटी, मतलब होता है मिक्स होना। जैसे गैस है, ठीक है, अब जैसे तुमने एक रूम में तुम्हारे पास गैसेस, अब तुम परफ्यूम की बॉटल खोलो तो आई थिंक द इंटायर रूम विल स्टार्ट स्मेलिंग विद द सेम परफ्यूम ऑर्डर व्हाट द स्मेल ऑफ परफ्यूम इज़। ठीक है, सो व्हाट वाई इज हैपनिंग, आपने एक कोने में खोला परफ्यूम और पूरे रूम में आपको है ना परफ्यूम की स्मेल आ रही, दिखेगा तो है नहीं क्योंकि गैस है, लेकिन आपको स्मेल आने लगेगी, तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे हाँ गैस है। तो वही कंडीशन होती है डिफ्यूजिबिलिटी और मिसिबिलिटी की, गैसेस जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे में बहुत ईजिली जब एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होके कैसा मिक्सचर बना लेते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आपस में मर्ज होके, सपोज़ करो एक रूम है और इस रूम में यहाँ पे तुमने परफ्यूम की बॉटल खोली, तो ये परफ्यूम की बॉटल में से जो मॉलिक्यूल्स गैस के निकलेंगे वो यहाँ तक आ जाएंगे और पूरा कमरों में परफ्यूम की महक आएंगी। क्यों, क्योंकि इसमें एयर के साथ परफ्यूम के भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिक्स हो गए और उन लोगों ने कैसा मिक्सचर बना लिया है, होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजनिंग पार्ट। सो ये ऐसा क्यों हुआ भाई, यहाँ पे ऑलरेडी गैस भरी हुई है, सपोज़ करो इसमें हमारी एयर भरी हुई है और तुमने क्या परफ्यूम की बॉटल खोल दी, परफ्यूम की बॉटल खोली तो उसकी छोटे छोटे उसके भी पार्टिकल्स आके पूरे रूम में आ गए और तुम्हारा रूम जो है वो परफ्यूम के जैसा महकने लगा। नाउ व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, द रीज़न बिहाइंड दैट, यहाँ पे देखो कितना स्पेस, अब यही सॉलिड के बीच में तुम कर दो तो कहाँ आएगा, कोई जगह दिख रही है तुमको, बहुत कम इंटरमॉलिकुलर स्पेस ऑफ वो है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस है, तो क्या कहाँ के घुसेगा नया पार्टिकल, लेकिन यहाँ पे क्या है बहुत स्पेस है तो कहीं पे भी जा सकता है। तो ये रीज़न क्या हुआ, जो स्पेस हुआ, द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, अब उसमें कोई भी आ सकता है और इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस होने की वजह से भाई मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा है। ठीक, हेंस इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज़ लार्ज। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल चला तो इनका क्या हो जाता है, गैस मॉलिक्यूल्स हैव अ टेंडेंसी टू मिक्स विद द अदर गैस विद द हाई स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, आंसर यही लिखेंगे, हैव अ टेंडेंसी टू मिक्स विद अदर गैस।
मॉलिक्यूल्स। तो वो ही है स्पीड ऑफ मूवमेंट। अब एक पॉइंट इसमें और होता है स्पीड ऑफ मूवमेंट। स्पीड ऑफ मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा कि जो गैस पार्टिकल्स है वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन मास एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो आई थिंक दीज आर द 5 डिफरेंट बिहेवियर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, आपने पूरे सारे गैसेस को एक्सप्लेन करा है काइनेटिक थ्योरी के बेसिस। ये रीजनिंग आते हैं, 5 पॉइंट है, 5 में इनडायरेक्ट रीजनिंग आती है। सो प्लीज़ लर्न द रीजनिंग पार्ट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक्स फॉर द न्यूमेरिकल्स वन। लॉज हम पढ़ेंगे और हर लॉ पे न्यूमेरिकल्स अलग अलग है। सो वी हैव टू मेक अदर वीडियोज़ फॉर दैट।